Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to solve our mathematics workbook, and from the page number 39 we are going to solve, and today we are going to solve the workbook for our decimal chapters. Okay, that is the chapter number 10. So here we are going to solve the concept 10.1, that is the conversion involving fractions. Okay students, so here first we have to solve the recall section. We do have here multiple choice questions. Example number first, the price of, so here sharpener is there and the sharpener price is the rupees 5.30. so ये जो दिखाई दे रही है वो प्राइस है, तो यहाँ पर कहाँ पर आपको वो सही प्राइस दिखाई दे रही है? यस, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. सो दैट इज द रुपीज 5.30 is the price. So our option number C is the correct option. The second example, the price of table, that the table is rupees 50.50. So where is our correct option? Yes, our correct option is here. So that is rupees 50.50. So our B option is the correct option. In this example number 3, the price of rupees chair, that is the rupees 25.50. Where is our correct option? Yes, that the number. So here A option is our correct option. So that is the rupees 25.50, and we have to write down here the option number A. So let us now solve the remembering and understanding section, that is the multiple choice questions from that section. Example number 4 here, the system of writing numbers using a decimal point is called the decimal system. तो ये कौन सी सिस्टम है आपकी? डेसिमल सिस्टम. सो our option A, our option A is the called the is our correct option. So write down here the option A over here. Let us now turn the page. We have to open the page, that is the page number 4040. Let us solve some examples from the page number 40. Here we do have the example 5. Deci means, deci means हमें यहाँ पर deci का अर्थ क्या लेना होता है? Yes, deci means our 10 हम अर्थ लेते हैं deci का, that is a 1 0 10. So deci mean 10. So our correct option is the option B. Write down here option B. Now the decimal number 24.3 is read as 24.3 or 24.3, 243 or 23.4. So ये इसमें से सही ऑप्शन ये है हमारा C. How we read that? 24.3. So our correct option is the option C. Now let us solve the fill in the blanks example. Example number 7. The whole part in the decimal number is also known as which part? Let us find out. So it is called as an integral part. Which part? That is the integral part. So we have to write down here INTEGRAL, that is the integral part. So now let us solve the example number 8. The decimal part in the decimal number is always less than 1. ये हमेशा क्या होता है आपका? नंबर 1 से कम होता है. जो कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट होता है. डेसिमल पार्ट. तो यहाँ पर डेसिमल नंबर अगर हम कोई भी देखते हैं तो उसमें दो पार्ट्स आते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको 7.09 दिखा है, तो पॉइंट की जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट की राइट साइड वाला होता है हमारा डेसिमल पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल 9. द पॉइंट प्लेस बिटवीन द डिजिट्स इन अ डेसिमल नंबर इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. दैट पॉइंट इज नोन एज अ डेसिमल पॉइंट. सो राइट डाउन हियर डेसिमल पॉइंट is our answer over here. The point is known as a decimal point. Now let us solve the example number 10, that is the very short answer questions. So here we have the example 10. Convert the fraction 4/57 into its decimal form. तो इसको हमें क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है कि देखो जब भी आपको होल पार्ट
दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट, होल पार्ट आता है आपका, और फिर फ्रैक्शन नंबर आता है। तो उसके नीचे के हमें सिर्फ ज़ीरो काउंट करने हैं। अगर 2 ज़ीरो है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका। सो यहाँ पर ये कन्वर्जन बहुत ही आसान है। दैट इज़ इक्वल टू होगा आपका 457/100। दैट इज़ इक्वल टू, क्या करना है आपको बताता हूँ सिंपली। होल जो नंबर है उसको एज इट इज लिखना है, आगे पॉइंट लिख दो, और ये 57 तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पर है, तो ये 1 और ये 2, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए आएगा 57। सो दैट इज इन द डेसिमल फॉर्म। नाउ वी डू हैव कन्वर्ट द फ्रैक्शन 49/100 इनटू इट डेसिमल फॉर्म। ये भी बहुत सिंपल सी बात है। देखो 49/100 ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें लिखना है। देन ज़ीरो कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर एज यूजुअल नंबर लिख देना है 49, और यहाँ पर 1 2 0, तो यहाँ पर काउंट करना है 1 2 काउंट करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, आगे लिखना है आपको 0, दैट इज 0.49। सिमिलरली whenever you have to write down the decimal into the fraction, so what we have to do, let us write down that number, that is the 26.04 is equal to करके लिखेंगे हम। सो 26 होल नंबर एज इट इज रखेंगे। 04 है तो कितने हैं, 1 2, डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 है। तो सिमिलरली आपको 04 नंबर लिखना है, डिवाइड बाय लिखना है, और कितने 1 2 है तो 1 लिखना है, उसके ऊपर 2 0 लगा देने। सो दैट इज़ आवर आंसर, दैट 26/400। नाउ लेट अस सॉल्व द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 13 एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। चलो इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देयर इज़ अ 5 A1 है यहाँ पर, 5 3/10। सो इजी बात है, हमें 5 नंबर लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है, 3 के आगे ही पॉइंट आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा, क्योंकि एक ही 0 है तो यहाँ पर आएगा 5.3। B1 भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। B1 क्या है आपको 2 300, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 नंबर है, 3 है तो यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, मतलब 1 2, तो 2 डेसिमल आपको छोड़ देने हैं, मतलब आपका आएगा 0 और यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पर 1 तो यहाँ पर आपको 0 लगा देना होता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपके कन्वर्जन। उसी तरह से फ्रॉम द पेज नंबर 41, लेट अस कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। क्या है, पहला आपका A1 है, सो A1 इज योर 7.09, सो दैट इक्वल टू आएगा आपका, देखो 7 लिखना है एज इट इज़, फिर 09 कितने हैं, 2 है, 1 2, डिवाइड बाय आपको 1 लिखना है और आगे 2 0 लगा देने, क्योंकि 2 डेसिमल है उसके बाद, तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसी तरह से अगर आपको 7.90 है, लेकिन बी वही में क्या आपको है 7.90 है, तो 7 अगर आपका आता है कि 90, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लेनी हमें। देखो डेसिमल पार्ट में जब 9 के आगे 0 होता है तो इससे हमें क्या करना होता है, निगलेक्ट करना होता है। तो ये 0 हम निगलेक्ट करेंगे, तो ये नंबर एक्चुअली होता है आपका 7.9। ओके, सो यहाँ पर हम उस नंबर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर सी दैट इज़ 7 इज़ द होल नंबर एंड 9 अपॉन, एक ही डेसिमल इसलिए 9/10, दैट इज़ इन ओवर फ्रैक्शन नंबर में आएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात कौन सी रिमेंबर करनी हमें, दैट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट, तो किसी भी डेसिमल नंबर में अगर लास्ट वाले जो 0 है तो इसे हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, इसे नहीं लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपके लिए लिख कर बता सकता हूँ। अगर आप लिखते हो कि 6.300 है, तो इसकी वैल्यू आपकी बराबर इक्वल टू होती है 6.3, तो आगे के हम 2 0 यहाँ पर नहीं लेते हैं, और जो कि नहीं लिखते हैं। लिखने के लिए तो आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है ये 6.3। लेकिन अगर आपके पास 6.304 नंबर आता है तो ये 0 हमें नहीं कट कर सकते, आगे के नंबर के साथ हमें ये नंबर क्या करने होते हैं, इंक्लूड करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। सो यहाँ पर एक बात समझ लें कि अगर डेसिमल नंबर्स में अगर आगे 0 आता है तो वो 0 हम जनरली नहीं लेते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं। तो नाउ लेट अस सॉल्व द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो हियर राइट द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, तो यहाँ पर फॉलोइंग नंबर तुमको डेसिमल में हमें लिखना है। क्या दिया है A1 में, तो यहाँ पर देखो A1 में दिया आपको 2
2000 है यहाँ पर, तो इनको तो पहले हम ऐड करेंगे। देखो इस नंबर को हम ऐड करेंगे। सो 2 × 1000 होता है आपके 2000 प्लस 2 × 100 होंगे आपके 200 प्लस 1 × 10 है आपके, सो दैट इज़ द 10 एंड प्लस 3 × 1 है तो आपका होगा 3 एंड प्लस 9 10 है तो आपका 9 और ये 10 है, दैट इज़ द 9/10 आएगा आपका, और प्लस है आपका 3/100। तो इस नंबर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज़ इक्वल टू 2213 2213 पॉइंट, ये 9 आएगा तो ये 9/10 है एंड 300 से, तो 93 और 100 आ सकते हैं यहाँ पर, 9/10 एंड 300। सो लाइक दैट यू कैन राइट द expansion into the decimal numbers. One more examples I will solve for you, that is example number B. So यहाँ पर एक 4 × 10,000 है, that is ये आएगा आपका 40,000। सो ये नंबर आएगा आपका 40,000 प्लस 3 × 1000 है तो दैट इज़ 3000 प्लस 3 × 100 है तो दैट इज़ 300 आएगा आपका, प्लस यहाँ पर 2 × 10 है तो दैट इज़ 20 and plus 4 × 1 is 4 and plus 1/10 that is 1/10 and 3 × 1/100 that is 300। तो ये नंबर आप इस तरह से लिख सकते हैं 43,324 43,324। कैसे लिखा मैंने, 4 लिखकर 3 उसके आगे लिखा, हमें 3 उसके आगे लिखा, 2 यहाँ पर ये नंबर आगे लिखा और यहाँ पर 4 लिखा, 43,324 पॉइंट देना है यहाँ पर 13 दैट इज 1/10 एंड 300। सो दैट इज द नंबर 43,324.13 1/10 एंड 300। सो यहाँ पर 1300 यहाँ पर आएंगी उसके जवाब में। तो इस तरह से इस नंबर को हमने क्या किया है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये सारे नंबर को जब भी आप ऐड करोगे तो उसे आएगा, और जहाँ पर जब आपका 1/10 और 300 शुरू होता है वहाँ पर आपको देना है पॉइंट। तो ये बातें रखनी है। आगे के 2 एग्जाम्पल डेफिनेटली आप कर सकते हो, सो दैट 2 एग्जाम्पल फॉर योर होमवर्क पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस सॉल्व एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर द एक्सपांड द फॉलोइंग डेसिमल। तो इन डेसिमल को हम एक्सपांड भी कर सकते हैं। किस तरह से करना है देखो स्टूडेंट, मैं बताता हूँ। पहला वाला नंबर है आपको ए, कितना दिया आपको 9542.33 दैट इज द 9542.33। तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट एक्सपांड फॉर्म में लिखेंगे। देखो ये 1000 है तो 9 × तो देखो यहाँ पर 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस और 1000 प्लेस होती है, तो 9 × 1000 हमें लिखना है, प्लस 5 ये 100 प्लेस में है, सो 5 × आएगा हमारा ये 100 प्लस 4 ये है हमारा 10 प्लेस में है, दैट इज 4 × आएगा हमारा 10 प्लस 2 हमारा 1 प्लेस में तो 2 × आएगा आपका 1 प्लस पॉइंट के आगे का जो नंबर है पहला वाला नंबर तो इसको लिखना है 3, तो 3 आएगा आपका 10 और प्लस यहाँ पर आएगा आपका 3 दूसरा वाला जो नंबर है उसके नीचे आएगा आपका 100 दैट इज 300। तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन। सिमिलरली लेट अस सॉल्व फॉर द B1 एग्जाम्पल। सो B1 में देखो क्या है आपको 87,592.45। तो इस नंबर को भी हम लिख सकेंगे। देखो 1 प्लेस 10 प्लेस, ये देखो 500 है, 4 10 थे, देन आएगा आपका 1 प्लेस दैट इज द 2, 10 प्लेस 9, 5 इज द 100 प्लेस, 7 is at 1000 place and 8 is at 10,000 place. So we can write down the answer, that is equal to 8 × 10,000 plus 7 × 1000 plus 5 × 100 plus 9 × 10 plus
2 into 1 and plus पॉइंट के बाद पहला नंबर आ रहा है 4, सो यू कैन राइट डाउन 4 अपॉन 10, दैट इज द 410, प्लस यहाँ पर 5 दूसरा नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद, सो 5 अपॉन हमें लिखना है 100, सो 5 हंड्रेड्स, दैट इज 45 हंड्रेड्स, ये बाद में रह जाते हैं आपके. सो दैट इज़ योर सोल्यूशन. सो सिमिलरली यू कैन सॉल्व द, दैट इज़ फॉर होमवर्क पार्ट. अब ये लास्ट वन में आपको पॉइंट नहीं है तो आपको ये वाला पार्ट जो आएगा आपका 10th का, 10th हंड्रेड्स, ये वाला पार्ट उसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो ये भी आप लिख सकते हो. लेकिन यहाँ पर जो आपको ये नंबर है दैट इज 13,49,335, तो 13 इंटू 1 लाख आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप 1 इंटू 10 लाख करना है, फिर 3 इंटू 1 लाख करना है. फिर लास्ट वन एग्जाम्पल ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल. सो लेट अस सॉल्व द D1 ऑल्सो. सो D1 यहाँ पर मैं इस पार्ट में सॉल्व करूँगा यहाँ पर. सो D1 दिया आपको, देखो 13 लाख देन 49,335, 13,49,335, that is our number. So let us write down the decimal expansion for that. देखो 1 place, 10 place, 100 place, 1000 place, 10,000 place, lakh place and 10 lakh place. तो आपका आएगा देखो 1 इंटू 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर कितने जीरो होते हैं 1, सो दैट इज 10, 1 लाख हो गए ये, तो इसके ऊपर और एक ज़ीरो, दैट इज़ द 10 लाख. तो सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ इसमें भी आपको सॉल्व करने की. ये 1 नंबर लिखना है, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 जितने ज़ीरो होते हैं उतने ज़ीरो आपको करने हैं, लगा देने. बाद में प्लस ये 3 नंबर लिखना है, उसके आगे कितने नंबर से 1 2 3 4 5, तो इंटू 1 लिख कर उसके आगे इतने ज़ीरो लगाए 1 2 3 4 5, प्लस 4 नंबर लिखना है, उसके आगे कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 1 लिखना है और उसके आगे 4 ज़ीरो लगा देने. देन प्लस 9 नंबर लिखना है, इंटू 1 लिख कर 9 के आगे कितने फिर है नंबर से 1 2 3, तो 1 के हो गए 1 2 3 नंबर्स लिखने हैं, ज़ीरो लगा देने हैं. देन 3 नंबर्स लिखना है, इंटू कितने ज़ीरो इसके आगे 1 और 2 ज़ीरो लगा देने. देन प्लस अगेन 3 नंबर लिखेंगे हम और यहाँ पर 1 लिख कर उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, और प्लस अगेन 5 लिखेंगे उसके आगे 1, तो उसके आगे कोई नंबर लिस्ट लिख हम 1 ही लिख देंगे. तो ये एक सिंपल तरीका है, यू कैन सॉल्व दैट एग्जाम्पल ऑल्सो लाइक दैट ऑल्सो, कि वो वाला नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखना है और उसके आगे जितने भी नंबर्स है उतने ज़ीरो उसके आगे क्या करने हमें लगा देने हैं. सो दैट इज़ अ ट्रिक टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल. नाउ let us solve some application level examples from our decimal chapter and from the page number 42. So here what we have, that 17 example, Manish and Ravi represented the color part of the figure as given. मनीष ने 4/10 दिखाया है और रवि ने क्या दिखाया है 0.04. सो हुज रिप्रेजेंटेशन इज़ करेक्ट, तो किसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करेक्ट है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मनीष का यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि किस लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके 10 पार्ट्स है, तो 10 पार्ट्स में से 4 पार्ट यहाँ पर शो किए, तो 4/10 का इसका फ्रैक्शन आएगा, दैट इज़ द फ्रैक्शन फॉर द मनीष के बारे का फ्रैक्शन उतना ही आएगा आपका. से 4/10 आता है, तो जिसकी वैल्यू आती है आपकी 0.4. ओके, एंड रवि ने जो रिप्रेजेंट किया है पार्ट, एंड रवि रिप्रेजेंट किया है, रवि रिप्रेजेंटेड दैट 0.04. सो ये पार्ट यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ द रॉन्ग पार्ट होगा. यहाँ पर ये पार्ट रवि ने जो रिप्रेजेंट किया है वो रॉन्ग पार्ट होगा, क्योंकि इसका करेक्ट डेसिमल आता है आपका 0.4. सो हियर वी कैन डेफिनेटली से दैट द मनीष रिप्रेजेंटेशन इज द करेक्ट. So we can say that Manish representation is correct.
सो 4/10 का या 4 पार्ट आता है, क्योंकि टोटल पार्ट्स आते हैं यहाँ पर 10 में से 4 पार्ट कलर है, दैट इज द 0.4, ये पार्ट आपके कलर है। नाउ द 1 एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल बैग 1 contains 75/10 kilogram of items and bags 2 contains 63/10, 63/10 or 75/10, that is the 63/10 kilogram of items. एक्सप्रेस द वेट्स एज अ डेसिमल्स, तो ये वेट्स हम क्या करेंगे, डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। सो यहाँ पर डेसिमल में चलो करते हैं। सो दैट इज बैग 1 के लिए करते हैं पहले। सो बैग 1 कंटेन 75/10, जैसे कि हमें पता है जब 1 नंबर आता है तो यहाँ से पॉइंट इधर शिफ्ट होता है एक ही नंबर पर, तो नहीं तो डेसिमल के जो नंबर काउंट करने हैं हमें राइट से लेफ्ट तक, तो ये 1 पॉइंट करना है और उसके आगे यहाँ पर पॉइंट लगा दें। जैसे कि 75 नंबर है तो ये 1, इसके आगे यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, तो ये आ गया आपका डेसिमल में, दैट इज़ द 7.5 किलोग्राम। सिमिलरली फॉर द बैग 2 कितना है हमारा 63/10, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 63, काउंट करेंगे नंबर 0-1 है इसलिए 1 नंबर काउंट करेंगे और लगा देंगे डेसिमल यहाँ पर, सो दैट इज 6.3 किलोग्राम। सो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर दिए ये सारे वेट्स इन अ किलोग्राम और डेसिमल्स में भी आल्सो। सो नाउ लेट अस सॉल्व द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। हियर गिवन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस ऑफ सम स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल। सो यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करना है हमें किलोमीटर्स में। तो शरण ही यहाँ पर कितना है, शरण का डिस्टेंस है 6,740 मीटर्स, निशा का है 8,824 मीटर्स, आदित्य का है 7,548 मीटर्स और अरुण का है 6,998 मीटर्स। तो इनको हमें किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट करना है। सो लेट अस सॉल्व द सॉल्यूशन इन किलोमीटर्स, हम करेंगे उसका। सो वी नो दैट, फर्स्ट वी नो दैट कि 1000 मीटर दैट इज इक्वल टू हमारा होता है 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर होता है आपका 1000 मीटर का। सो वी इफ यू हैव टू कन्वर्ट द मीटर इनटू किलोमीटर, देन वी हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ किलोमीटर, विद द हेल्प ऑफ 1000। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर शरण के लिए हम करेंगे, देखो शरण के लिए आता है डिस्टेंस कितना हमारा 66,740 मीटर्स, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, दैट इज 1000, सो दैट विल कम इन अ किलोमीटर्स। तो यहाँ पर जीरो कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर भी वही करना है हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पर 6740 नंबर लिख दिया मैंने, 1 2 3 काउंट किया और यहाँ पर लगा दिया पॉइंट और ये आ गया मेरा किलोमीटर में, दैट इज द 6.740 किलोमीटर। सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंटेड निशा के लिए प्रेजेंट होगा यहाँ पर, निशा कितने हैं, दैट इज 8,824 डिवाइड बाय योर 1000, सो यू कैन एक्सप्रेस इन ए किलोमीटर 1 2 3, तो वही करेंगे हम यहाँ पर 8824 1 2 3, सो पॉइंट आया यहाँ पर, दैट इज द किलोमीटर, that is 8.824 kilometer. So similarly you can find out for Aditi and for Arun. Okay, so Aditi and Arun for your homework part. Okay, so now let us solve the example number 20. Sheila sells seashells by the seashore. The quantity in kilogram of seashells she pick on डिफरेंट डेज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर क्वांटिटी दी है इन किलोग्राम में शी शेल्स की, मंडे को कितने किए थे कलेक्ट, देन वेडनेसडे को कितने किए थे, फ्राइडे को कितने किए थे, दैट इज 6/10, 5/10, 7/10 एंड 9/10। रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ सी शेल्स शी पिक ईच डे इन डेसिमल्स। यहाँ पर हमें उनको क्या करना है, डेसिमल्स में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलो हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर उसके लिए। तो डे लिखते हैं यहाँ पर, डे कौन सा है यहाँ पर, मंडे है,
मंडे को उसने पिक किए थे कितने, दैट इज़ द 6/10। सो इसको डेसिमल में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सो दैट इज़ 1 0 आता है आपको वहाँ पर, तो मतलब 6 और 1 काउंट करते तो यहाँ पर 0 आता है, तो इसके आगे लगा देना है 0। सो दैट इज़ 0.6 किलोग्राम। सो दैट इज़ द किलोग्राम, that quantity she pick up on Monday. Then on Wednesday she pick up, that is 5/10, 5/10। so that is the 5 नंबर लिखना है, यहाँ पर लगा देना है 0 और यह आएगा आपका किलोग्राम में। so 0.5 kilogram. Similarly students, you can write down for the Friday and the Saturday, so that part is for your homework part. Okay students, I hope so you understand that examples and you can easily solve that examples at home. Still, if you do have any query or doubt, you may contact with me. Now let us turn the page and solve the short answer questions. यहाँ पर हमें दिया है राइट द डेसिमल दैट रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखो A1 में आपको दिखाया, देखो ये होल पार्ट यहाँ पर शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 पार्ट यहाँ पर क्या है, शेडेड है। और बाद में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से सिर्फ 2 पार्ट खाली है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट 10 में से क्या है आपके ये है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपको होता है कि ये होता है आपका 1 + 8/10, जिसको हम लिखते हो ऐसे लिखते हैं 1/8। और अगर इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमारा आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर देखो एक ही पॉइंट है तो यहाँ पर आएगा इसका 1.8। सो दैट वी रिप्रेजेंटेड दैट पार्ट इन अ decimal part. Similarly you can represent the B part, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से यहाँ पर 9 पार्ट शेडेड है और एक पार्ट शेडेड नहीं है। सो आपका आएगा 9/10। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारा पता है कि 9 हम लिखते हैं, 1 है तो 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, तो यहाँ गया 0। सो डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा 0.9। Now let us solve the long answer questions. Observe the pattern in these decimals and write the next 3 numbers in each. तो यहाँ पर चलो आगे के 3 नंबर लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 2.32, 2.34, 2.36। तो आगे आएगा देखो आपका 2.38। वाई 38? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है हर एक नंबर्स में 0.02 से, ठीक है। जो मतलब 10th 100th पार्ट से वो क्या आप हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। आगे आएगा फिर आपका 2 पॉइंट, अगर इसमें भी 2 इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा आएगा 2.40। इसमें भी 2 इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा आएगा 2.42। सो दैट 3 numbers I can write down here. So here I can write down increase by 0.02। तो इससे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर मतलब 200 से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली ये तो बहुत इजी है आपके लिए, सो दैट पार्ट इज़ फॉर योर होमवर्क। 1/10, 120, दैट इज़ 1.10, 1.20, 1.30। सो यू कैन राइट डाउन 1.40, 1.50, 1.60। सो इंक्रीज़ बाय यहाँ पर आएगा आपका इंक्रीज़ बाय, कितने से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर 0.1, मतलब 0.10 से इंक्रीज हो रहा है, 0.10 से इंक्रीज हो रहा है। नाउ हियर 4.15, 4.25, 4.35, अगेन हियर आल्सो इंक्रीज बाय 10 से हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आएगा फिर 4.45, 4.45, then you can write down 4.55 and then 4.65. So you can write down again here increase by 0.10. Similarly in this example 22.11, 22.22, 22.33. So here it increased by 11.
that is a 22 point, then 44, 22 point, then 55, 22 point, then 66, and so on. So here we can say that increase by 0.11, that is the 11. So 11 का टेबल एक्चुअली आपका आ रहा है 11 1 11 22, 11 3 33, 44, 55, 66, and likes and so on. So here students, we completed our workbook part, and also here you do have given some practice questions. So that example you must have to write in your mathematics notebook and complete your mathematics notebooks. So our examinations are coming soon now, but you must have to complete your notebook properly. So you can give it to me for checking purpose, and I will check it properly. Okay, I hope so कि आपने नोटबुक अच्छे से कंप्लीट किए होंगे. But that examples, whatever examples I told to you, that you must have to write and complete in your notebooks. That is your study part, students. And also take care of yourself. Bye bye for now. Take care.